Om Shanti. Good evening and a very warm welcome to everyone. Coming to the today's topic, Be Light and Feel Might by Dr. E.V. Swaminathan Garu. So let's welcome Dr. Swaminathan Garu on stage. He is a teacher, life coach, counselor and consultant with a clear focus on creating a value-based society. He has done BTech, DTH, PG, DHC, MSc Psychology, MSc Counseling, MDA, PhD in Emotional and Quantum Intelligence. At present, he is a research guide for MBA and PhD students. He has a unique distinction of conducting training for Army at the highest battlefield of the world at SBS, Siachen Battle School at the India-Pakistan-China border. He has also appeared in numerous television talk shows, conducted training sessions in more than 200 industries in Asia, Africa, and Middle East, conducted a training for the Indian Army, Navy, Air Force, CRPF, BSF, CISF, CRPF, and NSG, National Security Guards, CBI, and all state police forces. Dr. E.V. Swaminathan Garu associated with the Brahmakumaris Vidyalaya for the last 25 years. So Dr. Swaminathan Garu is taking our beautiful session now. Be light and feel might. ओम शांति. सभी प्यार से बोलिए ओम शांति. गुड इवनिंग, नमस्कार and Jai Hind. So on behalf of the Brahma Kumaris Shanti Sarovar, I extend a very, very hearty welcome to all of you on this Sunday evening talk. All of you understand Hindi also? So, okay. आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ. And I appreciate all of you that you have all come on time. That is something that I really appreciate. So the topic is a very beautiful topic. It's all about being light and feel light. So since the topic is all about light, I will certainly use the domains of science. But मैं जितना हो सकेगा उसको मैं हल्का फुल्का रखूँगा. Okay? So that is not heavy to all of you. Yeah. तो मैं ये जानना चाहूँगा पहले आप में से कितने मेरे दोस्त हैं जो आज पहली बार शांति सरोवर आए, वो जरा हाथ उठाएं. अरे वाह. बाकी सब इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाकर स्वागत करिए. वेलकम वेलकम. ओके, तो चलिए आज का हम इस सुंदर यात्रा पर निकलें. आई विल स्पीक टू इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग इन हिंदी आई विल सी दैट आई विल ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश in case some of you don't understand Hindi. In fact, I remember I was interacting with my engineering students many years before when I was a faculty in Mumbai University. तो मैंने हमारे students को कहा, there's a very great scientist, a successful entrepreneur, and certainly a very wonderful human being. बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, सफल उद्योगपति हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं. कौन है ये व्यक्ति? So my students were not able to guess the answers. मैंने कहा, I'll give you a hint. And I showed them the image of this personality. फिर मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, बताइए कौन है? तो my students still had a little bit of doubt and confusion. तो मैंने कहा मैं आपको hint देता हूँ. This is that wonderful scientist who transformed the world from darkness towards light. एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने विश्व को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर गए. कौन है ये व्यक्तित्व? करेक्ट आंसर. सर थॉमस अल्वा एडिसन. Then I asked my students कि बताइए मुझे एडिसन साहब इतने पसंद क्यों आते हैं? तो एक ने कहा सर बिकॉज ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब. मैं कहा ओके, एनी अदर आंसर्स? तो एक विद्यार्थी ने कहा सर हमने सुना है इज ट्राइड फॉर थाउजेंड्स टाइम्स एंड देन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब. मैं कहा ऑल दीज आंसर्स आर वेरी राइट आंसर्स, बट आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल इन द AICT जर्नल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जर्नल में पढ़ रहा था. So when I read a small incident about Edison, my respects towards Edison increased drastically. So friends, I quote that article for you. उसमें लिखा था, the whole world was waiting with bated breath about the demonstration of this electric bulb. And one day before Edison क्या करता है? He calls his lab assistant, young boy, और उसको बल्ब देता है और उसको instruction देता है, please carry it to the venue of demonstration. So this lab assistant young boy ये बल्ब लेकर venue की तरफ जा रहे होते हैं. And in midway he slips and the bulb is smashed into pieces. Bulb चकनाचूर हो जाता है. When this news reached Edison, he did not react at all. फिर से अपने लेबोरेटरी में गए, सारा रात काम किया. The next day morning, as soon as he opened the gates of his laboratory, the whole crowd was gathered there.
वेरी क्यूरियस कि आज डेमो होगा कि नहीं होगा। और जैसे एडिसन के हाथ में एक नया बल्ब देखा तो सबने राहत की श्वास ली, भाई आज डेमो जरूर होगा। तो एडिसन looked at the crowd, then he observed the lab assistant, the same boy standing at one corner, very sad, feeling very low, मायूस, डिप्रेस्ड, दुखी, अशांत। सो एडिसन looked at boy और उसको इशारे से नज़दीक बुलाया। जब ये लड़का एडिसन के नज़दीक पहुंचा तो एडिसन ने क्या किया? He handed over the bulb to the same boy and repeated the instruction. Please carry it to the venue of demonstration. सो एडिसन का जो दोस्त था वो साइड में खड़ा था, वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। एडिसन, हाउ कैन यू डू दैट? ओनली यस्टरडे दिस बॉय हैड स्मैश्ड योर बल्ब इनटू पीसेस, हाउ कैन यू गिव इट द सेम क्लमजी बॉय? कल ये लड़के ने आपका बल्ब को चकनाचूर कर दिया, आप फिर से उसी लड़के को बल्ब देते हो, आप कैसे कर सकते हो? तो एडिसन लुक्ड एट हिज फ्रेंड एंड मेड अ वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट। एडिसन ने कहा, yesterday when the bulb was broken, his heart was also broken. It is easy to create a new bulb, but it is a very, very great challenge to mend a broken heart. कल जब बल्ब टूटा तो इस लड़के का दिल भी टूट गया। एक बल्ब तो हम फिर भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक टूटे हुए दिल को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको समझ में आया क्या? फिर तालियां तो बजाओ। माय गॉड, इंग्लिश में बोला नो रिएक्शन ऑन योर फेसेस, तो मुझे लगा मेरा इंग्लिश थोड़ा ठीक नहीं है। देन आई ट्रांसलेटेड इन राष्ट्रभाषा। थैंक गॉड आपने तालियां बजाई दोस्तों, अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड इन माय मदर टंग ऑफ मलयालम ऑल्सो। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि एडिसन वॉज नॉट जस्ट इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, राइट? वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं थे, वो भावनात्मक स्तर पर बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन दिस वर्ल्ड, आज जो कुछ भी आप देखते हो, इज द इन्वेंशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब। इनफैक्ट एडिसन हैड, कहते हैं, मोर देन 800 पेटेंट्स टू हिज नेम, करेक्ट? लेकिन उसका व्यक्तित्व का अगर आप देखेंगे तो ऑलवेज लाइट। कितनी बार उसने ही हैड टू फेस सो मेनी सर्कमस्टांसेस, बट वी आर नॉट एंटरिंग इनटू दैट डोमेन। इनफैक्ट जब हम लाइट की बात करते हैं तो द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज द सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और ये जो सूर्य का जो प्रकाश है, ये हमारे फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेज ऑफ द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। तो जब से सूर्य को वैज्ञानिकों ने देखने लगे, सो दे वांटेड टू स्टडी अबाउट दिस प्रकाश, दे वांटेड टू स्टडी अबाउट दिस लाइट। 200 years बिफोर, जो उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उनके बीच में एक डिबेट होता था, और डिबेट जो था उसका टॉपिक ये था, वेदर लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव और वेदर लाइट इज अ पार्टिकल। इफ यू वांट मी टू ट्रांसलेट इन हिंदी, तो आज से 200 साल पहले वैज्ञानिकों के बीच में तर्क होता था, डिबेट होता था कि ये जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में ट्रैवल करता है या अणु के रूप में ट्रैवल करता है। आप में से कितनों को लगता है कि वो तरंग वेव के रूप में ट्रैवल करता है? वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कितनों को लगता है कि वो अणु के रूप में, एटम के रूप में ट्रैवल करता है? वो हाथ उठाएं। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं उठाया? अब वो हाथ उठाएं। भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम जबरदस्ती है क्या? आई अप्रिशिएट योर आज़ादी है। तो जो लग रहा था ना, पता नहीं वेव है, पता नहीं पार्टिकल है, तो ये कंफ्यूजन ना जो आप लोग को हो रहा है ना, आज से 200 साल पहले वैज्ञानिकों को हुआ था। थॉमस यंग इन द ईयर 1800 to 1803, that's what the record says, he did a very wonderful experiment. ये हम और आप फिजिक्स में पढ़ते थे, लेकिन उस समय शायद हमको इतना समझ में नहीं आया था। आई एम स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, यू माइट हैव ऑल्सो कम अक्रॉस दिस एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट का नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। तो आज ये प्रोग्राम के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा ना, तो इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थोड़ा यूट्यूब और गूगल में जरा देखना। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। धीरे 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 फिर इसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग हुआ। तो थॉमस यंग नामक एक वैज्ञानिक ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं मलयालम में भी बोलूँगा। एंड आई वांट सम ऑफ यू हु कैन ट्रांसलेट दिस
statement in the sweet language of Telugu before I speak Malayalam. Okay? तो थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब ना दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ डबल स्लिट, आप देख सकते हो स्क्रीन पर. स्लिट मतलब स्मॉल पोर्शन, मे बी कट इन अ कार्डबोर्ड और समथिंग लाइक दैट. और उन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को या प्रकाश को, लाइट को भेजा. बाद में दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, फोटॉन्स ऑल्सो, बट इन सिंपल पार्लेंस. ओके, जब उन्होंने इस लाइट को भेजा तो थॉमस यंग की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर वो वेव होगा ना तो सामने जो उसका परछाई पड़ेगा वो, क्योंकि दो स्लिट हैं तो दोनों स्लिट का इमेज आएगा, तो देन ही विल अंडरस्टैंड कि दैट इट्स ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वेव. क्योंकि अगर वो पार्टिकल होता था तो सिर्फ एक स्लिट से जाता था. तो थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया, दोनों स्लिट पर प्रकाश को भेजा, एंड देन जो इमेज आया जो आप पीछे देख सकते हैं, ही सॉ अ पैटर्न. सो ही केम टू द कंक्लूजन, उसको लगा कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, तरंग के रूप में ट्रैवल करता है. लेकिन इंटरेस्टिंग डायमेंशन ये था कि जब थॉमस यंग ने उस लाइट को देखना आरंभ किया विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा, when Thomas Young started seeing that light going through the slit, the light changed its nature and it started behaving like a particle. समझ में आई बात? मैं हिंदी में बोलता हूं, कौन इसको तेलुगु में ट्रांसलेट करेगा? कोई तो करिएगा ना, है ना? बहुत सिंपल है. थॉमस यंग ने देखा कि जब वो लाइट को वो स्लिट से भेजते थे तो तरंग के रूप में जाता था और उसको सामने वेव के रूप में दिखाई देता था, वो इमेज उसको मिलता था. लेकिन जब थॉमस यंग ने उस लाइट को देखना आरंभ किया, व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग द लाइट चेंज्ड इट्स नेचर एंड इंस्टेड ऑफ बिहेविंग लाइक अ वेव इट बिकेम अ पार्टिकल. मतलब आपको सिर्फ एक पैटर्न दिखाई दिया. कौन बोलेंगे तेलुगु में? अरे बोलो भाई, तेलुगु आता तो है ना, और क्या भाई, दैट्स योर मदर टंग, सच अ स्वीट लैंग्वेज. एनीवन प्लीज? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. क्या नाम है सर आपका? रघुवीर. तालियां बजाइए इनके लिए. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, एक मिनट माइक में बोलिएगा. अच्छा, सॉरी, जस्ट वन. ओके, बताइए. Please tell that in Telugu. Correct. Correct. Yes, तालियां बजाइए. Correct. Very good, sir. Very good. Please take your seat. I'll tell in Malayalam also. Okay. തോമസ് യങ് ആ പ്രകാശത്തിനെ ആ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൽ അയക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം കണ്ടത് അതിനൊരു ഇമേജാണ്. അപ്പം തോമസ് യങ്ങിനെ മനസ്സിലായി അതൊരു വേവാണ്. പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ, തോമസ് യങ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട്, ക്യാമറ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യാ, ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രകാശം അതിനെ പ്രകൃതി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അത് വേവിന് ബദലെ അതൊരു പാർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മാറി. ദിസ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. लाइट जिसमें कोई चैतन्यता नहीं है, इट्स स्थूल ना, लेकिन जब आप उसको देखने लगते हो तो वो जो प्रकाश जो है वो अपनी प्रकृति को चेंज करता है. Now this became the basis of quantum mechanics. Now I'll tell you, in 2022, this is 23, last year, Nobel Prize for Physics 3 वैज्ञानिकों को मिला, and all the 3 scientists who got the Nobel Prize for Physics was in quantum mechanics. Alien Aspect, John Clauser and Anton Zeilinger. Each conducted groundbreaking experiments using entangled quantum states. Quantum means point, energy. एटम से भी छोटा, उसको क्वांटा कहते हैं. ये लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको जो येलो में मार्क किया हुआ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं कि अगर हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई भी मैटर आप लो, so there is a kind of an attraction between them and therefore it is like a solid. अगर आप पेन देखेंगे, माइक देखेंगे, you look at the table, you look at the chair, it's a combination of many atoms and they have a force of attraction because of which you get a shape. तो उनके बीच में आपस में तो संबंध है ही. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अगर आपने एक पार्टिकल को थोड़ा दूर लेकर गए
तो ये जैसे बिहेव करने लगता है ना, वैसा ही वो पार्टिकल भले दूर पर है स्टार्ट्स बिहेविंग। जैसे कभी कभी आपने जुड़वे बच्चे को देखा होगा, एक जुड़वा बच्चा आपके यहाँ पर हैदराबाद में और एक जुड़वा बच्चा जो है मुंबई में। तो कहते हैं ये जुड़वा बच्चा अगर रोने लगेगा तो उसका जो ट्विन ब्रदर है मुंबई, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किया गया। सो ही ऑल्सो स्टार्ट्स क्राइंग। नाउ दैट इज between two twins who are connected with human emotions. They have got the same DNA. So that can be understood. Same rang, roop, swaroop. But the interesting dimension of quantum mechanics was कि वो पार्टिकल था, पार्टिकल दूर लेके गए, उसमें कोई इमोशंस नहीं, और ये जैसे बिहेव करने लगा वैसे ही वो पार्टिकल भी बिहेव करने लगा। आपको ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लाइट करता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू अ पजल, simple mathematical puzzle which require basic mathematics, addition, subtraction, division, multiplication, ठीक है ना, और हम सबको पता है वो बेसिक मैथमेटिक्स। तो मैं आपको एक सिंपल पजल बताता हूँ, ये पजल को देखकर आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। इज दैट ओके? सो मैं एक सिंपल बेसिक्स प्लस माइनस यही आपको बताना है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, और आपको उसका उत्तर ट्राई करना है। ओके, लेट मी सी हु गेट्स द आंसर फर्स्ट। मैं देखता हूं किसको ना सबसे पहले ये आंसर मिलता है। आर यू रेडी? इफ यू वांट यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स, इफ यू वांट यू कैन यूज योर लाइफ लाइन्स ऑल्सो। आपके बच्चों को फोन कर सकते हैं, हेलो छोटू क्या कर रहा है? मम्मी मैं कार्टून शो देख रहा हूँ। बोला हेल्प मी आउट विद दिस पजल यार। एंड दिस छोटूस दिस डेज आर वेरी वेरी बुद्धिमान, दे विल गेट यू द राइट आंसर। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, लेट अस सी। ओके, here is this puzzle. First row, this plus this equal to 9. Second row, this plus the 2 gun equal to 13. Third row, this minus this equal to 1. Last, this plus this into this. Your time starts now. बोलिए, बोलते जाइए। 19, 27, 10, 27, 27. Wow, very good entanglement, eh? 20, 22, 11, 16 या 60, 1, 6, 12, हाँ जी, 12, 21, 19. वाओ, सो क्रिएटिव पीपल हैं। सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट आंसर्स। आप लोग तो बड़े रचनात्मक हो। 26, 126, किसने बोला? सर के लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। सर कितना मेहनत किया सर, सेंचुरी मारा। 126, ग्रेट सर, वंडरफुल। हाँ जी सर। 19, 30, 12, 20, 12, हाँ जी, ओके, 27, 21, 19, ओके 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 ओके, वेरी गुड, वाओ, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो आई अप्रिशिएट ऑल योर आंसर्स, और इतने सारे आंसर्स में somebody gave the right answer also. 9. तो अभी हमने सर थॉमस एल्वा एडिसन को देखा. नाउ वी लुक एट अनदर ग्रेट साइंटिस्ट. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज सर एल्बर्ट आइंस्टीन. कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन बड़े बुद्धिमान थे, और कहा जाता है इस IQ was 155 प्लस, एंड इट इज सेड दैट IIT के बच्चों का IQ इज 105 प्लस. तो नेचुरली आइंस्टीन थोड़ा तो ज़्यादा बुद्धिमान है ही. तो वर्षों पहले उन्होंने एक बहुत सुंदर डायलॉग बोला था, एंड आई कोट आइंस्टीन व्हेन ही सेड, इफ आई हैड ओनली 1 hour टू सेव द वर्ल्ड, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. Yes. मैं हिंदी में बोलता हूँ. आइंस्टीन कहते थे कि अगर पृथ्वी को सारी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए अगर मेरे पास 1 घंटा है, 60 मिनट्स, तो 60 मिनट में 55 मिनट तो मैं उस प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगा, सिर्फ 5 मिनट सोल्यूशन. और आप लोग के संस्कार कैसे थे? बाप रे, बिफोर आई टोल्ड द प्रॉब्लम, बिफोर यू कुड टुक, श्वास लेने के पहले आंसर्स बताने लगे. एंड इट्स नन ऑफ योर फॉल्ट. आप लोग तो सभी निर्दोष हो. द प्रॉब्लम इज विद स्वामीनाथन. मैंने वो पजल दिया और लास्ट में डायलॉग क्या बोला? लेट मी सी हु गेट्स द आंसर फर्स्ट. हेलो स्वामी, आपको ये डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी?
बट वही संस्कार है, बचपन से हमको सिखाता है यू शुड कम फर्स्ट, यू शुड कम फर्स्ट, यू शुड कम फर्स्ट. अरे यू शुड गिव द फर्स्ट आंसर, नॉट, अच्छा इवन इफ यू आर गिविंग द फर्स्ट आंसर इट शुड बी द राइट आंसर. जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट आंसर दो और इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो. सो आई एम सॉरी, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई टेक बैक दैट स्टेटमेंट. फिर से मैं पजल रखता हूं, टेक योर ओन स्वीट टाइम. आराम से देखिएगा, है ना, आराम से प्राणायाम करिएगा, इनहेल करिएगा, एक्सेल करिएगा. एंड इफ यू वांट टू कीप द सेम आंसर एज बिफोर, सर 126 अभी भी बोलना चाहते तो मोस्ट वेलकम, भाई आज़ादी है. इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस दैट इज ऑल्सो वेलकम. ठीक है, ग्रेट, हियर वी गो. नाउ टेक योर ओन स्वीट टाइम. कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दी नहीं. अब देखो 21, 27, 22, you stand by this. सर एक मिनट, सर थोड़ा पीछे हैं. 19, 19, 45, 40, 16.5. सर रामानुजम सर विल बी सो हैप्पी विथ यू. बाप रे, पॉइंट्स में, डेसिमल में आंसर दिया. सर ग्रेट सर. 19 कितना, किसने कहा 22? हाँ 22. ओके चलो ठीक है, ठीक है. नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द राइट आंसर. ओके 21. ओके नाउ लेट्स गेट ऑन. आई अप्रिशिएट ऑल योर आंसर्स, क्योंकि जब आप उस प्रॉब्लम को देख रहे थे यू थॉट दैट इज द राइट आंसर एंड देयरफॉर यू गेव दैट आंसर ना. ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली गुड. तो लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर. द फर्स्ट रो, सॉरी, द फर्स्ट रो क्या है? 3 plus 3 plus 3 equal to 9. So one leaf of the scissor is equal to 1. You got it, right? Now 3 plus the 2 gun equal to 13. So 1 gun equal to 5. That also you got it right. Now 5 minus the 2 skull equal to 1. So 1 skull equal to 2. That also you got right. I know. अब लास्ट जो है, okay, 2 plus 5 into 4. वहां पे जो सिजर जो था ना, इट वॉज 4. देयर इज 2 plus 5 into 4. एज पर बॉडमास 5 into 4 is 20. 20 plus 2 is 22. तो मैडम गेव द राइट आंसर इन द फर्स्ट ऑल्सो एंड सेकेंड. इनके लिए तालियां बजा सकते हो. बट आई एम वेरी क्यूरियस, 126 कैसे पहुंचे सर? बाप रे, यू आर अ ग्रेट साइंटिस्ट. एंड 16.5, बाप रे, दैट इज ऑल्सो ग्रेट. ठीक है, इट्स ओके, मतलब लर्निंग वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइंस्टीन कहते हैं इफ आई गॉट 1 hour टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ आई वुड स्पेंड 55 minutes एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड ओनली 5 minutes टू गेट ऑन टू द सोल्यूशन. एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट आइंस्टीन कहते हैं ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वॉन्ट यू टू रीड विथ मी. आप सभी बोलिए, नो प्रॉब्लम, थोड़ा प्यार से बोलिए, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड from the same consciousness that created it. Consciousness मतलब स्मृति. और consciousness में 2 चीजें आती है. Okay, and that's what when you come and learn this technique of Raj Yoga meditation, the first day we are understanding what is consciousness as per Raj Yoga taught by the Brahma Kumaris. So let's not get into a debate. तो हमारे यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं वी यूज 2 faculties. फर्स्ट इज द माइंड एंड नंबर 2 इज द इंटेलेक्ट. हिंदी में उसका कहते हैं मन और बुद्धि. तो मन का काम है विचार करना, संकल्प करना, और बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना. इट इज द पावर ऑफ द सेल्फ टू क्रिएट इमेजेस. सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? मुझे याद आता है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 7th standard इन द स्कूल, वी हैड अ वेरी वंडरफुल टीचर, ब्रिलियंट टीचर. वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत. तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते शी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग एंड अ फेवरेट 1-line सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. फिर पढ़ाती, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. तो हमको मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था. So sitting in the classroom, I used to have a count of how many times she is singing the song. I was the official scorekeeper of my class. हर क्लास के बाद everybody used to say, Swami, तो ऐसे 3 times, 4 times, 5 times. Exam was inching close by, madam was in full spirit. तो 1 dozen से ज़्यादा बार गीत गाया.
तो ब्रोक ऑफ माई इलास्टिक लिम्ब. मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो बच्चों को सिखाया नहीं. उस दिन मैं घर में आया, मैंने घर में पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. अब उनका चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है. बड़े लोग मानते किधर है कॉन्सेंट्रेशन. और ध्यान ध्यान लगाकर पढ़ाई करो. मैंने कहा ध्यान मीन्स फोकस स्वामी, फोकस. मैंने कहा फोकस मीन्स कन्वर्जेंस. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस. एकाग्रता. मैंने कहा पापा एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन. मैंने कहा पापा पहले मैं वही पूछ रहा था. द आंसर्स यू आर गिविंग, इंग्लिश में उसको सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं. करेक्ट. सो दीज डेज व्हेन आई रिक्रूट माय पीएचडी स्टूडेंट्स, तो ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, एमफिल में क्या पढ़ा, कभी पूछते ही नहीं हूं मैं. आई आस्क देम ओनली वन क्वेश्चन, व्हाट्स कंसंट्रेशन. एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू विल बी एबल टू गेट इनटू दैट रिसर्च मोड. तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट टू यू. प्लीज शेयर इट विथ योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो. तो कंसंट्रेशन के लिए दो फैकल्टी बहुत जरूरत है, मन और बुद्धि. मन मीन्स संकल्प करना, बुद्धि मीन्स चित्र निर्माण करना. इन सिंपल बच्चों की भाषा में, मन इज लाइक एन ऑडियो, बुद्धि इज लाइक अ वीडियो. तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, सभी मुस्कुराते बोलिए. व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. अब राष्ट्रभाषा में बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं. अब इतनी दूर से मैं केरला से आया हूं तो खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा बहुत तो मलयालम सिखाकर जाऊंगा. मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम. थोड़ा जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. बहुत लोग सोच रहे अच्छा हुआ केरला में जन्म नहीं लिया, तो क्या क्या सीखना पड़ता है. हेलो, हम लोग कोई भी जन्म कहीं पर भी डाउनलोड हो सकते, ऑल विथ एनर्जी यू नो. तो अभी बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म केरला में अच्छा परिवार मिलेगा. गुस्से से बोलेंगे वो जीपीएस होता है, फिर ऐसे ही परिवार में जाएंगे. ऐसे मुस्कुराते बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिचिट्टिंडंगल. वाह, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा. सो यू आर वेलकम टू टेक बर्थ इन गॉड्स ओन कंट्री. वेरी ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी. आपने सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, बट व्हाट वाज योर फ्लो ऑफ एनर्जी, कितना खुशी से बोला. सो व्हाट्स द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस वन इज, फर्स्ट वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन व्हाट इज कंसंट्रेशन. नंबर 2, देखिए अब ये नया भाषा था तो यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. Yes, same thing. Our children, our grandchildren, every day they're learning new things. It's a challenge for them. When we were studying, when our children are studying, ज़मीन आसमान का अंतर. हम लोग और आप लोग जब पढ़ते थे तो बस वो एक ही दूरदर्शन होता था, आधा घंटा हफ्ते में चित्रहार चलता था. और आजकल बच्चों के इतना डिस्ट्रैक्शंस. इसलिए it's very very important that you should bring your children to such kind of an environment. That's very very important. तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है चित्र निर्माण करना. छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है ना और टीचर उसको पढ़ाती है, ए फॉर, आगे बोलो. वाह, वेरी गुड मेमोरी. जैसे ही बच्चा ए, टीचर कहते ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में पहुंचता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है, एप्पल. फिर मैडम क्या करती है, एक एक्सरसाइज बुक लेकर कहती है 2 pages ऑफ ए, होमवर्क फॉर टुमारो. और सारा रात मम्मा बैठ के लिख रही है ए ए ए. जितनी बार लिखते हैं. Therefore Einstein used to make a very wonderful statement. Imagination, सभी बोलिए आप, imagination is more powerful than dash. अरे वाह, कमाल है. Dash means fill up the blanks. हाँ, you are right. Imagination is more powerful than knowledge. तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था. मैंने कहा बच्चों, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए. बोला सर हमारी टीचर कहती है प्रेयर करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा, प्रेयर या मेडिटेशन करते वक्त आप आंखें बंद करते हो कि आंखें खोलते हो. सर हमारी टीचर कहते हैं आंखें बंद करो. हम लोग एक आंख खोलते जरूर है, टीचर की नजर पड़ती, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर. मैं कहा ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली.
राइट मैंने कहा आप लोग को कंसंट्रेशन की ज़रूरत है बच्चों, यस सर। कब ज़रूरत है सर? हम लोग जब पढ़ते हैं। तो मैंने कहा जब आप पढ़ाई पढ़ते हो तो आंखें बंद करके पढ़ते हो कि आंखें खोल करके पढ़ते हो? सर नेचुरली वी हैव टू कीप आईज ओपन। हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहा डज योर पापा रिक्वायर कंसंट्रेशन? यस सर, व्हेन इज ड्राइविंग द कार। So I asked him, so when he's driving the car, he requires concentration. Yes, sir. So does he keep his eyes closed or eyes open? Sir, eyes open, sir. मैंने कहा मम्मा को कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो सारे बच्चे सोचने लगे। एक बच्ची थी, हाँ सर, जब मम्मा भोजन बनाती है शी रिक्वायर्स कंसंट्रेशन सर। कभी नमक डालना भूल जाती, कभी इतना नमक डालती है। और मेरी मम्मा बहुत प्यारी है, शी कीप्स हर आईज ओपन। So in Raj Yoga, meditation is not just keeping your eyes closed or giving some mantras. No. कोई मंत्र हम लोग नहीं जपते। तो यहां भी स्पीक अबाउट कर्म योगी। कर्म कर रहे हैं बट योग कनेक्शन है। ओके सो कॉन्शियसनेस के लिए मन और बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी है। एंड अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड। कौन सा कॉन्शियसनेस? कोविड के पहले जब हम एक दूसरे से मिलते थे ना दोस्तों, तो बहुत प्यार से हम लोग पूछते थे हाउ आर यू। क्या पूछते थे? हाँ, जैसे ही कोविड आ गया तो वी स्टार्टेड वेयरिंग मास्क। सो वी डोंट आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू, वी आस्क द क्वेश्चन हु आर यू। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ राजयोगा मेडिटेशन इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, कि मैं कौन हूं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और यहां पर इसलिए इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। So I'll show you a small setup, okay, wherein you will be able to understand this very, very clearly. I'll explain into the domains of science to understand spirituality. और मुझे ये slide बहुत अच्छा भी लगता है. So whenever I'm into an engineering college and I want to teach them spirituality, so this is the slides I use. See, now the left side there are various instruments. On top left hand corner you can see an inverter, blower, engine, mixer, filter. अब ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इसको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। यस और नो? यस। ऑल द अप्लायंसेस दैट यू सी इन दिस वंडरफुल हॉल, दे आर डिजाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज। बल्ब इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर उसको करेक्ट वोल्टेज मिल रहा है ना तो वो जलता है, लेकिन अगर उसको करेक्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा ना तो इट विल कीप ऑन फ्लिकरिंग एंड इट विल डिस्टर्ब यू। आप कहते हैं या तो बल्ब को चेंज करो, नहीं तो यू स्विच ऑफ दैट बल्ब। तो इट शुड गेट द राइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज फॉर दैट। ओके, डिजाइन वोल्टेज। सेम थिंग हमारे शरीर में जो भी सिस्टम्स है, फॉर एग्जाम्पल आवर ब्रेन वर्क्स लाइक एन इन्वर्टर, आवर लंग्स वर्क्स लाइक अ ब्लोवर, आवर हार्ट वर्क्स लाइक एन इंजन, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स लाइक अ मिक्सर, आवर किडनी वर्क्स लाइक अ फिल्टर। तो हमारा शरीर में जो सारे सिस्टम है, इट इज ऑल्सो डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज। विच वोल्टेज? इट्स इमोशनल वोल्टेज। और अगर उसको वो इमोशंस नहीं मिलेंगे ना, इट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्लिकरिंग। Dis-ease, when I'm not ease with myself, I start inviting diseases. For example, our heart, दिल। बताइए दोस्तों, दिल को काम करने के लिए, अच्छी तरह से काम करने के लिए कौन सी इमोशन की जरूरत है? हार्ट। यस, इट्स लव। जैसे हार्ट में ना हमेशा आई लव यू लिखते। जैसे आजकल आप देखते हैं यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सीवियर हार्ट अटैक। बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि उनको कोई रिस्पेक्ट, रिगार्ड, प्यार से बात ही नहीं करता है। छोटा बच्चा एक बार डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको देख रहा था स्टेथोस्कोप लगाकर। तो छोटू ने पूछा, अंकल क्या कर रहे हो? तो अंकल ने कहा, बच्चे मैं आपकी दिल की धड़कन सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू योर हार्ट बीट्स। अंकल आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन टू माई हार्ट बीट्स, व्हाई नॉट? टका टक वहाँ फिट कर दिया। फिर वो डॉक्टर ने पूछा, आर यू एबल टू लिसन समथिंग? सो द स्मॉल बॉय आंसर्ड, यस अंकल, माई हार्ट इज स्पीकिंग टू मी। अच्छा बच्चा बताइए, आपका दिल आपसे क्या बोलता है? तो छोटू कहता, अंकल मेरा दिल कहता है आई लव यू, आई लव यू। द हार्ट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ लव। तो ये जो शरीर के जो सारे जो सिस्टम है, इट इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज, इमोशनल वोल्टेज। करेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में एनर्जी पहुंच रही है, ये एनर्जी कहां से आ रहा है? थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वो एनर्जी को या तो स्टेप अप करता है या एनर्जी को स्टेप डाउन करता है। राइट ना? उसी तरह हमारा जो मन है, मन वर्क्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। इफ यू थिंक गुड, ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी बढ़ेगा, बट मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, इट पुल्स डाउन द एनर्जी लेवल।
It's very, very important that our mind should be nourished with good, positive, energetic thoughts. अब प्रश्न उठता है कि ट्रांसफॉर्मर को एनर्जी कहां से मिलता है? It gets the energy from the power station. Now that's a circuit diagram. पावर स्टेशन को एनर्जी कहां से मिलता है? It is at the source of energy. तो हमें समझना ये होगा कि ट्रांसफॉर्मर हमारा मन है, तो विच इज द पावर स्टेशन? नाउ यू कैन नाउ सी, ओके, तो वो जो एनर्जी जो आ रही है वो ट्रांसफॉर्मर से, राइट, वो घर पर पहुंच रहा है. उसी तरह हमारा मन बुद्धि ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन विच इज द पावर स्टेशन? और यहां पर द क्वेश्चन अराइजेस, हु आर यू? तो राजयोगा में बताते हैं शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम मैटर टू एनर्जी. राइट, अ पर्सन इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ही इज मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो लोग उसको पकड़ के लेकर आते हैं, राइट, और डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन. डॉक्टर्स ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, अनफॉर्चुनेटली ब्रॉट लेट, ही इज डेड. तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट. आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी. So in Raj Yoga meditation, we understand that we are different from this body, a point of light, a point of energy. Now that's the power station. और वो पावर स्टेशन सारा सिस्टम को वो एनर्जी देती है. अगर किसी को लगता है कि आफ्टर माई डेथ I'll donate my cornea, I'll donate my heart, I'll donate my kidney, writes a will paper, passes off. Immediately there's a biocompatible human system. ये कॉर्निया यहाँ देख नहीं पा रही, अब दूसरे शरीर में फिट करो तो देख पाती है. Same thing happens with all other parts of the system. Why it's not working here? The brain is still there, बाबा. क्योंकि उस ब्रेन के अंदर जो पावर स्टेशन है वो नहीं है. So this understanding is very, very much important, right? अब देखो पावर स्टेशन को एनर्जी कहां से मिलती है? It's a power generator. Now the power generator, the source of energy, it could be hydraulic, it could be pneumatic, it could be electrical, it could be nuclear also. So around 1 month before, I was there in Madras Atomic Power Station. So I had a 2-day training program there, and the station director ने मुझे पूछा कि we are so happy to welcome you here. मैंने कहा आप मुझे थोड़ा सा पावर, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन घुमा दीजिएगा ना. तो it took me around the nuclear power station. और उसका जो न्यूक्लियर जो वो रिएक्टर होता है ना, तो मैंने उनसे पूछा आप सभी तो एटॉमिक साइंटिस्ट हो भाई, आज तक किसी ने एटम को देखा है क्या? तो व्हाट्स द आंसर? यस और नो? आज़ादी का अमृत महोत्सव में द करेक्ट आंसर इज नो. कोई एटम को देख ही नहीं सकता है, बट यू कैन सी, फील द एनर्जी, टेरिफिक लेवल ऑफ एनर्जी. और एटॉमिक पावर स्टेशन में एनर्जी बिल्टअप कैसे होता है? यूरेनियम 235 न्यूक्लियस में एटम को वो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं. जब न्यूट्रॉन से वो बम्बार्ड करते हैं तो एटम स्प्लिट होता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है. जब एनर्जी रिलीज होती है, हीट डेवलप होता है. तो हीट को क्या करते हैं, वो पाइप से दे सेंड इट वेयर वाटर इज बीन सेंट, तो स्टीम जनरेट होता है. स्टीम जब जनरेट होता है तो टर्बाइन को चलाता है, एंड देयरफॉर वी सी द लाइट. एंड ही सेड इन द इयर्स टू कम इंडिया विल बी सो सफिशिएंट बिकॉज वी विल हैव सो मेनी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री. तो न्यूक्लियर पावर को आप किस तरह से यूज करना, ये तो मनुष्य के हाथ में है. तो मैंने धीरे से पूछा आप लोग ये न्यूक्लियर बम, बोले सर हमारे पास बहुत है और बाजू वालों के पास भी बहुत है. मैंने कहा लेकिन ये न्यूक्लियर बम बनाते कैसे? बोला इट इज इन डिफरेंट पार्ट्स बट वी असेंबल इट. मैंने कहा असेंबल्ड है? बोला हाँ, इट्स असेंबल्ड सिचुएशन. कब पता नहीं, अचानक, क्योंकि उसको असेंबल करने में बहुत टाइम लगता है. इसलिए कहते हैं ना, रशिया हैज गॉट सो मेनी न्यूक्लियर आर्सनल्स इवन इन द फॉर्म ऑफ मिसाइल्स एक्सेट्रा. यस, वो तो हो गया साइंस का. स्पिरिचुअलिटी में द मोमेंट आई सी दैट आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, हम सर्व आत्माओं का पिता वो परम ज्योति, द सुप्रीम लाइट, सुप्रीम लाइट. एंड व्हाट्स मेडिटेशन? मेडिटेशन इज दिस. तो यहां बैठकर जब आप मन और बुद्धि से उस परम ज्योति को देखने लगते हो तो एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग. 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और आपके चारों तरफ का एक सुरक्षा कवच. टुडे द होल सिचुएशन इज सो मच ऑफ टॉक्सिक इन नेचर. लुक एट द मीडिया, लुक एट द इवेंट्स, लुक एट द इंसिडेंट्स, राइट? तो अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आपका जो चारों तरफ का जो ऑरा जो होना चाहिए ना, इट शुड बी वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव. सो दिस इज व्हाट इज द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन. So having said this, now let's try to find out what is the action plan. अभी भाई करना क्या है हमें? Simple 5 action plan. Okay.
So let's try to understand the action plan. If you want, you can note it down also. Right? तो 5 action plan क्या है? Action plan to feel might. तो क्या करना है? Number 1 is be light. सभी बोलो? Yes. Number 2 is feel light. Yes. Number 3 is see light. Number 4th is eat light. Number 5th is do light. These are the 5 simple steps of Raj Yoga meditation. So Raj Yoga meditation सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है. It's basically a very beautiful meditative lifestyle. And meditation has come from the Latin word mediri. Mediri means to heal yourself. So the first one is be light. Right? तो हर दिन सुबह उठना और अपने आप को देखना और बहुत प्यार से डायलॉग बोलना. सभी बोलिए आई. थोड़ा जोर से बोलो. अरे भाई डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो. आई. और प्यार भरो. आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. बेसिकली वी आर ऑल एनर्जी. आत्मा, एटम, एनर्जी पॉइंट, लाइट. जैसे ब्रह्मा कुमारी वर्क्स ऑन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. हमारा सेंटर रशिया में भी है तो हमारा सेंटर यूक्रेन में भी है. हमारा सेंटर चाइना में भी है, हांगकांग में भी है, ताइवान में भी है. We have got centers. I was meeting some of the Chinese delegates in Delhi last week. From there I am coming here. So जब भी हम किसी को देखते हैं रंग रूप स्वरूप में वो व्यक्ति में भी ये फॉरेनर में भी ये धर्म, ये जाति, ये भाषा, but internally we are all energy point and therefore it's very easy for us to work on this universal consciousness. और ये लाइट को जानना क्यों ज़रूरत है? राइट? क्योंकि सबसे बड़ा जो डर है, द ग्रेटेस्ट फियर इज द फियर ऑफ डेथ. डॉक्टर्स ने उसको परसेंटेज दिया 100 out of 100. Sometime before I was doing a program for the Indian Air Force, so I was walking towards the auditorium. तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे. मुझसे पूछा, सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले? मैंने कहा येस आई एम अवेयर दैट पीपल फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स. बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते हैं. उस समय राफेल नहीं आया था और उनको सबसे बड़ा डर इज द फियर ऑफ डेथ बिकॉज ए सुपरसोनिक जेट्स. छोटा सा गलती की एंड यू आर गॉन. सो प्लीज हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर. मैंने कहा आई विल ट्राई. सो व्हेन आई शोइंग देम दिस लाइट, मैंने कहा हम शरीर से अलग पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी है. और फिर मैंने ऑडियंस से पूछा आप में से हाउ मेनी ऑफ यू हैव द फियर ऑफ डेथ? तो एवरीबडी सेड यस. एक पायलट ने खड़े होकर कहा नो सर आई डोंट फियर डेथ. मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है. मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो. आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स का होगा, आपके अपने बच्चों का होगा. यस और नो? तो सोचने लगे. उनकी वाइफ साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो. हैव यू एवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड माय इमोशंस? डिजुम 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 वर्ल्ड वॉर 3. किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता है, but we certainly fear the death of our closed ones. 7th standard basic physics. Energy can neither be created nor destroyed. तो क्या करना चाहिए? राइट? बी लाइट. और मन बुद्धि से अपने आप को ब्रकुटी के बीच में. Now that's very interesting from the Thomas Young experiment. इसलिए मैंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया कि जैसे आपने अपने आप को मैटर के रूप में देखा ना, हमारे संस्कार चेंज नहीं होंगे. इसलिए हम लोग न्यू ईयर में कितने रेजोल्यूशंस पास करते हैं, हम लोग कितना मोटिवेशनल लेक्चर्स अटेंड करते हैं, वी पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट व्हाई डजंट आवर संस्कार चेंज? इट विल नॉट चेंज क्योंकि इट्स नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. अगर हमारे संस्कार को चेंज करना होगा तो सबसे पहले हमें मन और बुद्धि से अपने आप को वो लाइट के स्वरूप में देखना पड़ेगा. तो जब आप लाइट के स्वरूप में अपने आप को देखते हो तो जो हमारे मन बुद्धि की जो तरंग है ना, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इंग्लिश में बोले क्या, क्यों, अरे क्यों नहीं बोलो, इंग्लिश में बोलो. कैसे, कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा. प्लीज टेल दैट इन इंग्लिश. हाउ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ. तेलुगु में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां. तेलुगु. अंदोंडे हिंदी. सारा दिन इतना चलता है
ओनली थिंग इज व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद माय पीएचडी स्टूडेंट्स, मैंने कहा ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. ये कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, दैट्स व्हाट द साइंटिस्ट ऑल्सो डू ना. आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू गेट एन आंसर फॉर ऑल दिस फाइव. इट्स एक्चुअली अ फ्लो ऑफ एनर्जी. जितना आपका मन हल्का, when you're driving a car, if there is a fogging, you'll not be able to see the scenes in front of you. Probability of accidents is very high. उसी तरह when there is a problem, when there is a challenging situation, it could be anything. तो when you are light, कुछ समय के लिए थोड़ा lightness में को feel करो, right? And therefore in quantum mechanics बहुत प्यार से वो हमें समझाते हैं. तो हमें संस्कार को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए ना. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, ऑडियो करें. There's a very famous TV program on the Discovery Channel called Nova. A show called The Fabric of the Cosmos, What is Space? It was hosted by Brian Greene, theoretical physicist and professor of physics at Columbia University, who wrote the book called The Fabric of the Cosmos. Here is a 5-minute video clip from that program. As we examine the fabric of the cosmos ever more closely, we may well find far more surprises than anyone ever imagined. Take me, for example. I seem real enough. वो अपना हाथ पकड़ के don't कहता, I? I seem real enough. Well, yes. But surprising new clues are emerging that everything, you and I and even space itself, may actually be a kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality, may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface. Now this picture is a very interesting picture. आप पीछे देख सकते हो दिस जेंटलमैन, वो सुबह से शाम तक क्या करता है. Okay, his behaviors, attitude, etc., संस्कार. It actually depends upon this power station, the Atman, the soul, the energy. और सुबह से शाम तक वो कौन से इमोशंस में रहते हैं, उससे उस व्यक्ति के चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है. इट्स कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम. करेक्ट. तो अगली बार मैं आऊँगा ना तो मैं अपने साथ एक कैमरा लेकर आऊँगा. Now for example, कैमरा से किसी का फोटो खींचना है. वी यूज दिस मोबाइल एंड एवरीथिंग टू टेक सेल्फी एक्सेट्रा. तो कैसे वो फोटो खींचते हैं? यू थ्रो लाइट, सम लाइट इज ऑब्जर्व्ड, सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड, सम लाइट इज डिविएटेड एंड उससे एक इमेज बनता है. सिंपल अगर हम कहेंगे, हाउ डज द कैमरा वर्क? Now thanks to scientists and engineers, they have developed a camera wherein you can find out the aura of a person. So next time I'll bring a camera with me. आप में से कितने लोग अपना फोटो खींचना पसंद करेंगे? वो जरा हाथ उठाओ. वाह, बहुत अच्छा. तो अगर आपका अच्छा फोटो अगर आपको चाहिए, वैसे हमारे है ना फेस का फोटो अच्छा चाहिए तो वी डू लॉट ऑफ फेयर एंड लवली एंड ऑल दैट श्रृंगार, राइट ना. गुड इनफ, गुड इनफ, प्लीज कंटिन्यू. लेकिन अगर आपका ये जो फोटो अच्छा आने के लिए क्या करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. बी लाइट के साथ फील लाइट. हल्का रहो, फीलिंग. तो मन बुद्धि से सबसे पहले अपने आप को देखो, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. नंबर 2 है ना, आत्मा का स्वधर्म, शांत स्वरूप. इसलिए हमारे संस्कार क्यों नहीं चेंज होते? जब हमारा मन इस वाइब्रेटिंग एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, उस समय आप बच्चों को कितना भी समझाओ, चेंज नहीं होगा. बिकॉज द माइंड इज फ्लक्चुएटिंग एट बीटा, बीटा प्लस. लेकिन आपको मन को लाइटनेस में लेकर आना पड़ेगा, हल्का. देयरफॉर हियर इन राजयोगा मेडिटेशन यू पुट लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. आप घर में भी कर सकते हो. तो जब आप लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाते हो, धीरे 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 आपकी एनर्जी लेवल एकदम साइलेंट होने लगती है. आपके मन और बुद्धि को इस मैटर कॉन्शियसनेस से धीरे से एनर्जी कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा. वहाँ पर आपको अपने आप को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा. आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग. करेक्ट. तो द फर्स्ट स्टेप इज बी लाइट. Number 2 is feel light. So I'll introduce you to another wonderful scientist who will explain us the meaning of what do you mean by be light. ये वैज्ञानिक कौन है मैं आपको हिंट देता हूँ. The moment you see him on the screen, आप सभी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा. इससे जब वो आएंगे जरा तालियां बजाना. सर प्लीज कम सर. वो दरवाजे से नहीं आएंगे, वो स्क्रीन से आएंगे. वर्तमान समय में सर कहाँ इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी हिम. तो तालियां जरूर बजाइए, तालियां बजाइए.
The modern day great scientist who falls in the league of Edison, Einstein is Dr. Kalam sir. And I'm so happy to tell you, Dr. Kalam, when he was with the DRDO, at that time he started this particular project, a research project about the application of meditation in one's health and overall well-being. And basically it was to take care of the stress of the most stressed out professions of our country. Army, Navy, Air Force, BSF. और इसमें जो project partners थे was the DRDO, DPAS and the Brahma Kumaris. This project started in 98. It got finished in the year 2006. As the Honorable President of India in the year 2006, he's telling ki what you should do to bring your transformer, that is mind intellect, feel light. It's a 42 minutes presentation. समय की अपनी एक मर्यादा है. So I'll just tell you the main action plan. Dr. Chopra. Speak from you. His Excellency, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road, Shantivan. Abu Road Shantivan is the We are headquarters very of Brahma grateful to you, Kumaris, sir, Mount Abu. being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. This conference is a unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program. We started with the what time? 27 years before, when I came to the Brahma Kumaris, I was pleasantly surprised. यार यहाँ पे 4 बजे उठते हैं, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, जबकि हमारा तो उस समय वेकअप कॉल वाज 9:30, 10 o'clock. 4 बजे. एंड फर्स्ट टाइम मैंने अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस इन माउंट आबू, मैं कहा कल सुबह उठ के देखते तो हैं यार कैसे लोग उठते हैं. 4-5-6 अलार्म रखा और फिर उठा. उठ के देखा, आई वाज सो हैप्पी टू सी इतने सारे लोग मॉर्निंग 4 a.m. एंड स्लोली नाउ दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, राइट. यहाँ पे भी शांति सरोवर में जितने भी आप भाई बहनों को देखेंगे ना, सुबह 4 बजे के पहले उठते हैं और 4 बजे नीचे मेडिटेशन रूम पर आते हैं. सब लोग एकदम साइलेंट. देयर द कॉन्शियसनेस इज सो प्योर, सो डिवाइन, द एनवायरनमेंट इज सो ब्यूटिफुल. अच्छा, धीरे धीरे देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज क्वालिटी सर्कल. जब आप बहुत लोगों को देखते हो, दे आर डूइंग दिस, स्लोली यू गेट दैट एनर्जी, राइट. वैसे बचपन में हमारी टीचर हमको एक बहुत अच्छा डायलॉग सिखाती थी फॉर गुड हेल्थ. आप बोल सकते हो, अर्ली टू बेड, जोर से बोलो, शर्माओ नहीं. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन डैश डैश डैश. अरे वाह, डायलॉग तो बराबर याद है. हेल्दी, वेल्दी, वाइज. जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो. एंड यू नॉट, मतलब आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है, आप करके देखो. जस्ट डू इट फॉर 1 week, 21 days एंड यू विल सी, आपको धीरे धीरे आपका ऑरा अच्छा होने लगेगा. So what should we do to feel light, right? Let's see. In the morning at 4 o'clock, And the DRDO took the initiative of the formulating a project in collaboration with Global Hospital and Research Center. Mount Abu, an institution of the Brahma Kumaris, they added the 4th dimension of so well the thought of a neuropeptides. Now, this is one of the most important slide. तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है ना रेड सर्कल. इफ आवर थॉट्स आर डिस्ट्रेसिंग, फुल ऑफ वरी, एंगर. आप सभी हैदराबाद के लोगों को एंगर वैंगर तो नहीं आता होगा? आता है कि नहीं आता है? माय गॉड, वेरी ऑनेस्ट पीपल हैं. तो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ ब्रदर, आई एम टेलिंग यू, फॉर द नेक्स्ट 24 hours आपके साथ मैं भी करूंगा. कैसा भी सिचुएशन होना, फटाक से रिएक्ट मत करो. प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. करेक्ट. इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, सभी मेरे साथ बोलिए, आई. थोड़ा जोर से बोलिए, डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो. आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी, बट आई कैन टेक absolute control
और व्हाट हैपेंस विद इन मी, विथ मी एंड विद इन मी. मेरे साथ लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं उसको मेरे थोड़ी ना कंट्रोल है, सबका आज़ादी चल रहा है. मेरे अंतर पर जो चल रहा है ना उसको कंट्रोल करना, एंड इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग. इट डजंट हैपन ओवरनाइट. कंटिन्यूस लिटिल ट्रेनिंग करते करते. एंड ब्रह्मा कुमारीज हैज दिस वंडरफुल सिस्टम. जैसे आज आपने किया, इफ यू वांट टू अटेंड दिस 1 week कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 week कोर्स अटेंड करिएगा एवरी डे 1 hour, एंड देन यू गेट कनेक्टेड टू द सिस्टम एंड यू आर कनेक्टेड विद जूम ऑल्सो. आप घर में भी बैठ के कर सकते हो. During the COVID time, we were able to connect to the whole world thanks to science and technology. तो for the next 24 hours, फटाक से react मत करो. Increase your reaction time. Respond करो. और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? Let me see. The best advantage you get is your own health. If thoughts are distressing, meditation, hormone profile, mental, when they're anxious, so that what benefit sustainable healthy hearts. मिस्टर दीनदयाल समदानी मेल 50 to 98 में हमारे पास आए थे. टाइप ए पर्सनालिटी. स्वामीनाथन इज ऑल्सो टाइप ए पर्सनालिटी. एंड जो लोग टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं ना वो बड़े सफल होते हैं. आई टेल यू सम क्वालिटीज ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी. इफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी प्लीज रेज अप योर हैंड. विल बी वेरी हैप्पी टू जॉइन यू इन अ क्वालिटी क्लब ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी. आप में से कितने लोगों को पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है? वो जरा हाथ उठाएं. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल. आप में से मेरे कितने दोस्त को लगता है कि आपका काम एकदम सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, परफेक्ट होना चाहिए? वो जरा हाथ उठाएं. वेरी गुड, वेरी गुड. 2 में हाथ नहीं उठाए तो 3 में, तो तीसरे में तो जरूर हाथ उठाइए. आप में से मेरे कितने दोस्तों को स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है? घर स्वच्छ होना चाहिए, ऑफिस स्वच्छ होना चाहिए, एयरपोर्ट स्वच्छ होना चाहिए, प्लेटफॉर्म, हाथ उठा. वेरी गुड, वेरी. ठीक है. सो द कंक्लूजन इज, इन तीनों में अगर आपने एक में भी हाथ उठाया, यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक. हार्ट अटैक जरूर आएगा, तैयार रहिएगा. इंश्योरेंस करा लीजिएगा. अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट का नंबर रखेगा. 2-4 दवाई पॉकेट में रखेगा, कभी टक हो सकता है. सर क्या बात करते हो सर? हेलो, डोंट गेट मी रॉन्ग है. पंक्चुअलिटी, क्लेनलीनेस, परफेक्शन इज अ वेरी गुड क्वालिटीज. प्लीज सस्टेन इट. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. उसके कारण आपको और मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा. हार्ट अटैक आपको और हमको तब आएगा व्हेन वी एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी लाइक मी. मिस्टर दीनदयाल समदानी टाइप ए पर्सन. हर बात पर गुस्सा आता है. रोड पर भी जाएगा तो इतना भड़कता था, ट्रैफिक इतना है, रोड ठीक नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी करप्ट, चीफ मिनिस्टर करप्ट, प्राइम मिनिस्टर क्यों बैठा वो भी करप्ट है, एवरीबडी इज करप्ट. तो उसको बोला आपको गुस्सा आता? बहुत गुस्सा आता है. क्यों गुस्सा आता? मैं सबको सुधारने की कोशिश किया. सुधरे? बोला नहीं. क्या हुआ? बोला सर 2-4 आर्टरीज ब्लॉक हो गए सर. बोला सर आप क्या करने का इरादा है? आप बताइए सर. मैंने कहा आप किसी को सुधारने की कोशिश मत करिए. So for so many years, for last 20 years, we have been training the defense forces. Today the program was at 6:30. By 6:20 I was ready. क्योंकि that's a संस्कार. और मैं अपने संस्कार को देखता हूं around 15-20 years before. जब भी कोई स्टूडेंट लेट आता था ना मैं इतना भड़कता था. Why did you come late? Punctuality, discipline, very important in your life. How will you become an effective personality? When I joined this project, Dr. Satish Gupta बड़े प्यार से समझाया. सर एंगर मत करो सर. मैं कहा सर डॉक्टर साहब मेरे मुंबई के बच्चे सर पर चढ़कर बैठते हैं, जब तक 2 लगाएंगे नहीं सुधरते नहीं है. और बोलते बोलते डायलॉग बोल दिया. सर आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है सर. सो द डॉक्टर स्माइल्ड एट मी एंड सेड बाय द वे व्हाट डिड यू स्टडी? मैं कहने के लिए तो इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, बट देन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड मेटलर्जी. मैं कहा सर आप समझा दीजिए. सो डॉक्टर वेरी स्माइलिंगली एक्सप्लेन, स्वामी लोहा लोहे को काटता है लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है. या एंगर, ANGER. जब भी एंगर आए ना पुट एन अल्फाबेट D इन फ्रंट ऑफ एंगर. बताइए दोस्तों एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा बच्चों एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? एक खड़े करके कहता सर एंगर के सामने D लगाने से डैंगर होता है सर. डैंगर नहीं, डेंजर है डेंजर. आजकल मेरे स्टूडेंट्स लेट आते पता मैं क्या करता हूँ? बड़े प्यार से अपना हाथ दिल में रखता हूँ. वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था ना भी बड़े प्यार से बोलता हूँ. माई डियर बॉय, why did you come late? Punctuality, discipline, very important in your life. How will you become an effective engineer? मेरे सारे स्टूडेंट मुझे घूर के देखते कहते सर जब से आप मेडिटेशन करने लगे ना आप सुधर रहे हो सर, हर दिन जाइएगा सर. You please keep on continuing going. You have to tell your people, you have to tell your children, you have to tell your colleagues,
You have to tell your juniors. But with what flow of energy. See, Mr. Dindal Samdani, 98 में हमारे पास आए थे, इतने सारे आर्टरीज ब्लॉक, अपने ऊपर काम किया, आर्टरीज ब्लॉक ओपन अप, बहुत स्नेह से, गुस्सा नहीं. फील लाइट, हैप्पीनेस, जॉय, लव, अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए कभी कभी यू आर प्लानिंग फॉर अ वेकेशन, कितना समय टिकट विकेट बुक कर दे, एवरीथिंग इज डन, और उस दिन आपको यू हैव टू कैच अप अ फ्लाइट और यू हैव टू कैच अप अ ट्रेन. अब सब तैयारी कर दिए और फिर आपने वाइफ को बोला, भाई आज तैयार हो गए क्या? नहीं, आई विल टेक सम मोर टाइम. देन यू भाग जाते हो. क्या करते हो? यू टेक सो मच ऑफ टाइम टू तैयार होने के लिए. बोल दिया. पुअर लेडी, शी गॉट अप 3:34, शी वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, लंच, एवरीथिंग फॉर यू. इट विल टेक सम टाइम फॉर हर टू एक्यूप हरसेल्फ. अब वेकेशन में जा रहे थे, फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, फॉर एंजॉयमेंट, फॉर आनंद, वहीं मूड आउट हो गया. तो वाइफ का चेहरा इतना सुंदर हो जाता है क्योंकि आपने बोल दिया. और जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हो तो इंडियन रेलवेज बड़े प्यार से कहता है, बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक द ट्रेन इज बिन डिलेड बाय मोर देन 3 hours. सो इट्स नॉट दैट व्हाट यू आर टेलिंग इज करेक्ट, इट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी. और उसमें कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत बहुत जरूरत है. तो 1 इज बी लाइट, नंबर 2 इज फील लाइट, दैट आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग. 3rd है सी लाइट. तो सी लाइट मतलब सुप्रीम लाइट. और इसे कोविड के समय पर वी क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो. दिस वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना. What is this girl telling? Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body is my car. क्यों नहीं हम छोटे बच्चों को बचपन से ये सिखाते? क्यों नहीं है? If our children can learn all formulas, equations, derivations, this can also be taught. It can be integrated as part of a, curriculum. Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body is my car. Here in my forehead I shine bright, and my Father is the supreme light. Here in my forehead I shine bright, and my Father is the supreme light. And my Father is the supreme light, that Param Jyoti. हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं. शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु. गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, सतनाम ओमकार. व्हाट डिड जीसस क्राइस्ट से? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट. हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है. नूर मीन्स, माँ कहती ना, ये बेटी जो है मेरे आंखों का नूर है, तारा, ज्योति, प्रकाश. तो जब हम मन और बुद्धि से अपने आप को लाइट के रूप में देखने लगते हैं तो हमारे संस्कार धीरे धीरे चेंज होते हैं. लेकिन मन और बुद्धि से जब हम उस सुप्रीम लाइट को देखते हैं तो ये ऑरा बिकम सो स्ट्रांग कि आपके ऑरा में कोई भी आएगा ना, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल स्टार्ट, उसके संस्कार चेंज होने लगेंगे. दिस इज समथिंग वी कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट. जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट. चलते फिरते भी आप कर सकते हो. जैसे आजकल हमको चार्ज करने के लिए पॉइंट नहीं मिलता है तो वी यूज अ पावर बैंक. तो आप ट्रैवल कर रहे हो, नो एक्स्ट्रा टाइम. आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, टेक 1 minute, 10 minutes, 20 minutes, यू आर इन द मेट्रो, बस आराम से हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, द सुप्रीम लाइट को मन और बुद्धि से देखना इतना ईजी है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए सहज राजयोग. ओके, सो इट इज बी लाइट, फील लाइट, सी लाइट. इसलिए यहां पर परमात्मा का वो जो सत्य परिचय दिया जाता है. ओके, देखिए, दिस वन वाज द फर्स्ट स्लाइड. ओके, दिस वन वाज द सेकेंड स्लाइड. फील लाइट, आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग, लवफुल बीइंग, प्योर बीइंग, पावरफुल बीइंग. थर्ड वन इज द सी लाइट, उस परम ज्योति को बीच बीच में देखना. द फोर्थ वन इज ईट लाइट, हमारा भोजन जितना सात्विक हो. So I would suggest, now it's not compulsory for you, right? But as far as possible, अगर हमारा भोजन एकदम लाइट हो, बिकॉज हमारा जो शरीर जो बना हुआ है, इट इज़ मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड. और इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
Albert Einstein, Edison, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, Pythagoras, Plato, George Bernard Shaw, Leo Tolstoy, Carl Lewis, Martina Navratilova, Muhammad Ali, Amitabh Bachchan, Dr. APJ Abdul Kalam sir, Mahatma Gandhi ji, and Swami Bhai. Yeah. Yeah, this is a great quality club. So I welcome all of you. ये सारे लोग बड़े हैंडसम ब्यूटीफुल भी हैं, बड़े बुद्धिमान भी हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे आर प्योर वेजिटेरियंस, राइट ना. तो अगर आपके घर का वास्तु हीलिंग को ठीक करना है तो भोजन पर ध्यान देना, राइट. किसी का आप किसी को मार देते हो या जानवर को या किसको, कितना स्मेल आता है, और उसको आप काट कूट करके फिर वह बहुत समय तक फ्रिज में रखना, राइट. सो इट गिव्स अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट. So just see that if you can, and if you can want to help this beautiful nature. गर्मी इतनी हैदराबाद में बढ़ रहा है, गर्मी so much there in Kerala also, in Bombay also. So Intergovernment Panel for Combating Climate Change, IPCC, some years before they got the Nobel Prize, Peace Prize. क्या किया उन्होंने ये बताया, आर्टिक अंटार्कटिक मेल्ट हो रहा है, सुनामी आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, इनसे बचना है. तो one of the recommendation that they gave was if you can be on a pure vegetarian diet. इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट. खास करके जितने भी लेडीज़ हैं, आज घर में जाएंगे ना, किचन में जाएंगे, जब भोजन बना रहे तो बहुत शांति से, खुशी से, प्रेम से भोजन बनाइए. अगर आपने गुस्से से भोजन बनाया, ये मेरा जीवन है क्या, जिंदगी भर में भोजन बनाते रहो, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, राइट. और भोजन खाते वक्त बहुत साइलेंटली, खुशी से भोजन करना. I was invited to SVNIT, Sardar Vallabhbhai Patel National Institute of Technology, Surat. So the Dean Director जो Civil Department है ना, Dr. SV Patel, तो उन्होंने कहा स्वामी भाई आप मेरे घर पर आइए. और जब मैं घर पर था तो he offered some fruits and some breakfast. And then he told, for so many years when I have my food, I'm in total silence. मैं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बात नहीं करता हूँ. Now he's HOD of Civil Department. Right, and I was so inspired. I met another one commandant in Indian Navy in Delhi. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई. उन्होंने कहा कि मैं इतने वर्षों से I never honk my car. I never honk my car. तो जब vote of thanks complete हो गया तो I walked up to that commandant sir and said I was very inspired, but I am in Kerala. केरला में तो dead end होते हैं, तो वहाँ पे for a personal safety one has to honk. बोला स्वामी भाई I was posted in Southern Naval Command Cochin. और मैं हर वीकेंड पर आई यूज टू गो टू तेकड़ी, आई यूज टू गो टू मुन्नार, आई यूज टू गो टू आलमपुर, एंड यू नो मुन्नार इज सच अ, है ना, क्रिस क्रॉस रोड, वहाँ पर भी मैं हॉन्क नहीं करता हूँ. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, है ना, स्मॉल एक्शन प्लान, यहाँ से लेकर आप घर पहुँचने तक डोंट हॉन्क योर व्हीकल. दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू कैन इंटीग्रेट इन योर लाइफ. ज़रूरत पड़ रहा है तो ठीक है, बट स्लोली स्लोली इसको कम डाउन करो. अब सामने भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, आप हॉन्क कर रहे हो, राइट. एंड द लास्ट वन इज डू लाइट. खुशी में रहना, आनंद में रहना. ऑलवेज बी हैप्पी व्हेन यू आर मीटिंग पीपल, राइट. तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बता देता हूँ. वन विल डू अ फिजिकल एक्सरसाइज, देन विल डू अ मेंटल एक्सरसाइज, देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम, एंड देन विल वाइंड अप द सेशन, राइट. ओके, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो जहान है. आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन नेवी, तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कम राइट आंसर, राइट आंसर. तो जहाज के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरत है. योर हेल्थ, सेहत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे सारे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है, ठीक है. तो अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, पहले देख लीजिएगा, हाथ नीचे रखिए, अपना इंडेक्स फिंगर लेना, इसको 3 बार टैप करना और एक शब्द बोलना. क्या कहेंगे पता है? वाह 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 जिंदगी वाह. वाह वाह कहना. मेरे मुंबई के बच्चे सुबह उठते हाय हाय से चालू करते, फिर हाय हाय संस्कार ही बन जाता है. हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं. आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? वाह. वेरी गुड. सभी अपना हाथ रखिए, इंडेक्स फिंगर लीजिए और बोलिए वाह 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 जिंदगी वाह. अब मैक्सिमम लोग तो ठीक कर रहे हैं, मैंने देखा कुछ पीछे से लोग वाह वाह वाह, काय का वाह वाह. No, power itself. I will do this exercise once again. And if I see any one of you, wow, 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 with lots of love, respect and regard, मैं आपको बुलाऊंगा.
यहाँ पे कुर्सी दूंगा, यहाँ बिठा दूंगा, सबके सामने करना पड़ेगा. इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू? यस, करें. आई ऑब्जर्व ऑल ऑफ यू. डोंट वरी, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं. अरे भाई करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो. लेकिन जितना आप खुशी से करेंगे ना, योर ब्रेन वुड रिलीज हैप्पी हार्मोन्स. उसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफ्लिन्स कहते हैं. डॉक्टर्स की भाषा में उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. ये क्षण जीवित हूं, अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं है. कैन आई लिव दिस सेकेंड विद एब्सोल्यूट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन. ठीक है, सभी करेंगे खुशी से. किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए. ठीक है, लेकिन जोश के साथ होश होना भी जरूरत है. आजू बाजू के जहाज का थोड़ा ध्यान रखना. ऐसा भी अपना हाथ रखिए, बड़े मुस्कुराते हुए कहिए, वाह 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 जिंदगी, वाह वाह. वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक काम करिए, 2 फिंगर लीजिए और कहिएगा, वाह 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 मेरा परिवार, वाह. करिए. वेरी गुड. 3 लेकर करेंगे, वाह 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 मेरा देश, वाह. करिए. चौथा कहेंगे, वाह 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 ये प्रकृति, वाह. 5वां कहेंगे दोनों हाथ जोड़कर, वाह 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 वो परम रक्षक, वाह. वेरी गुड. जैसे आप ये संडे टॉक होगा, बाहर जाएंगे, इतना ट्रैफिक हैदराबाद में कि कुछ पूछो मत. क्या कहोगे? वेरी बुद्धिमान. हैदराबाद पीपल वेरी इंटेलिजेंट पीपल हैं. वाह 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 हैदराबाद का ट्रैफिक, वाह. और कुछ नहीं कर सकते हो. अपना बीपी नहीं बढ़ाओ, हार्ट अटैक मत लेकर आओ. ठीक है. और जब आप ये हैदराबाद में करने लगे ना, तो बॉम्बे में आओगे ना, तो टेंशन नहीं होगा वहां पर. करेक्ट. अच्छा, आप में से कितने पेरेंट्स को लगता है कि आपके बच्चे हैं, आप में से कितने पेरेंट्स को ये चाहते हो, इट्स योर विश, कि हर दिन आपके बच्चे वाह करके उठें? वो जरा हाथ उठाओ. चाहने की बात है, उनका भी आज़ादी चल रहा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है. वेरी गुड, वेरी गुड. आप में से कितने डियर लविंग पेरेंट्स चाहते हो, योर विश, कि आपके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन है ना वाह करके स्कूल कॉलेज में जाएं? वो जरा हाथ उठाओ. चाहने की बात है, वो करें नहीं करें. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. आप में से कितने लविंग डियर पेरेंट्स चाहते हो कि आपके बच्चे ना एग्जाम के दिन आकर कहें, मामा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं खुशी से एग्जाम में जाऊंगा, वाह वाह करके विजय होकर आऊंगा? ऐसे चाहते हो? जरा हाथ उठाओ. चाहने की बात है. अच्छा, गुड गुड. कितनी अच्छी चाहना है ना. अब लास्ट क्वेश्चन टू यू. आप में से मेरे कितने दोस्त हर दिन वाह करके आज मैं ऑफिस जा रहा हूं ऐसा सोचते हो? वो जरा हाथ उठाएं. पता नहीं कब मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म होगा, पता नहीं ये ऑफिस से कब छुटकारा मिलेगा, पता नहीं ये बॉस कैसा है. जैसे जैसे हाई हाई करते रहते हो ना, सारा वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है. वाह वाह करो. That's what is very, very important. Okay. So we'll do one thing. We'll take up 3 minutes of meditation and I'll show you some of the places. हाँ जी. अच्छा, आपके बच्चे भी आए हैं? अरे वाह. Good, good, good. Welcome. तो I'll show you some places where I had gone. Why am I showing you these places is very interesting. Then we will do 3 minutes of meditation and then yeah, these are some of the photographs. I usually keep these photographs because they are very close to my heart. This is Indian Navy. Jaan hai to jahaj, jahaj. This is our team of the Brahma Kumaris in Southern Naval Command in Cochin. So we are in front of that warship. इसकी कहानी फिर मैं कभी बताऊंगा. This is Indian Air Force, Bangalore, Yalanka. He is our good friend, Wing Commander Sachanji, now promoted as Group Captain in Pathankot. So I was interacting with all of them. This is Indian Air Force, this is Indian Army, right at the borders. So if you want to understand stress, we should come here and stand here. इस तरफ भारत है, then there is a no man's land, और उस तरफ जो है it's a पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री. और नेबरिंग कंट्री में सारा सामने बंकर्स लगे हुए, कभी भी फायरिंग हो सकता है. और जब फायरिंग होगा, nobody is going to question that country कि why did you do this firing. And this Jawan has to stand here for 6 hours to 8 hours. So when a person is fluctuating between life and death, highest level of stress. तो मेरे ख्याल से आज से हम लोग ना कभी ये स्ट्रेस वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए. Right? This is Major General Bipin Rawat, 2012.
went on to become the general and thereafter the CDS, the first CDS of India. A very thorough gentleman, 2012. These are the paramilitary forces, police forces. These are the energy commandos. Correct? And this is the world's highest battlefield of the world. This is Siachen. I'm at 12,000 feet up, Siachen Battle School. They took me to 18,000 feet up, and our soldiers, our Jawans are at 28,000 feet up. 28,000 feet up is, Darjeeling is 7,000. So 4 Darjeeling. Mount Abu is 4,000. So 7 Mount Abu. So today morning, 2 o'clock, I've got a flight from Hyderabad to Calcutta. So the maximum altitude is 33, 35. Chota jo flight hota, it is 25, 26. Indian Air Force flies at 40,000 feet. So our soldiers are at such a high altitude. मैं इसलिए आपको ये फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ क्योंकि उस हाईएस्ट अल्टीट्यूड में यू कैन नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज. वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, क्योंकि वहां पर अगर आपने गहरी श्वास लिया फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा. टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, देयर इज नो ऑक्सीजन एट ऑल. इसलिए कोविड बीच बीच में गवर्नमेंट कह रही कोविड फिर से आ रहा है, कोविड फिर से आ रहा है. आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुआ ना, द सेकेंड फेज ऑफ कोविड, और उसमें जो डेथ हुआ उसका मेजर कारण ये था, दैट वाज फियर. अब यहाँ के लोग के पास क्या ऑक्सीजन है, बट दे सर्वाइव. तो नेचुरली, और फिर वहाँ जाकर मैंने वाह 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 जिंदगी वाह नहीं कराया. कराते तो आज आपके दर्शन ही नहीं होते थे हमें. करेक्ट ना? तो द इंडियन आर्मी सेंटर्स देयर बिकॉज जहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज यू कैन नॉट डू, there we should learn this mental exercise. Don't get me wrong, we should do this physical exercise. Walking करना चाहिए, थोड़ा योगासन करना चाहिए. It pumps a lot of oxygen to your lungs and your system. It's very important. But किसी व्यक्ति को कोविड हो गया, कौन सा एक्सरसाइज आप रिकमेंड करोगे? A person is infected with cancer, क्या करोगे आप? हिल नहीं सकता व्यक्ति. तो वहाँ पर ये माइंड का एक्सरसाइज, इमोशनल एक्सरसाइज, and therefore it's very important to learn this technique of meditation. Okay, so next 2 or 3 minutes we will do this meditation. सभी आराम से बैठें, स्ट्रेट होकर बैठें. तो जो मैं बोलूँगा वो ध्वनि आपके मन तक आएगी. ओके, द ऑडियो विल कम टू योर माइंड, योर इंटेलेक्ट विल क्रिएट एन इमेज. करेक्ट? और जैसे जैसे मैं बोल रहा आप उसका इमेज बनाते जाइएगा और उसको फील करिएगा. ओके, वी विल डू फॉर 2 or 3 minutes. Then we'll all stand up in silence as mark of respect to our freedom fighters. And also for all those people in India, including you and me. हम लोग भले आर्मी, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं भी हैं, but every one of us are contributing to the nation's development, right? So for the well-being of everybody, we'll stand in silence for 1 minute, because Brahma Kumaris is a project partner with the government of India for Azadi Ka Amrit Mahotsav. So this is a standard protocol we follow. And then we'll wind up the program with the national anthem, okay? चलो आराम से बैठो, relax yourself completely. So friends, thank you very much for your valuable presence. Let's undertake a beautiful journey through our mind and intellect. मन का काम है संकल्प करना. The function of the mind is to think, and the function of the intellect is to create an image. Friends, I'll count from 9 to 0. And as we move towards 0, we'll all help ourselves to relax our body completely. Here we go. 9. शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए. Very good. 8. Please help yourself, friends. शरीर को एकदम हल्का छोड़ो. 7. Very good. Excellent. 6. बहुत अच्छा. 5. The body should become as light as cotton. 4. रुई की तरह एकदम हल्का. 3. 2. 1. And 0. Relax. Sitting over here,
See the early morning sunrise. सुबह सुबह का सूर्योदय, red in color. Early morning sunrise is a symbol of hope and optimism. One day everything will become okay. मन और बुद्धि से देखिए the rays of the sun slowly coming to you and touching you. सूर्य का ये लाल प्रकाश धीरे धीरे मुझ तक पहुंच रहा है और स्पर्श कर रहा है. The rays of the sun is very important for my physical well-being. मैं स्वस्थ हूं. I am healthy. मन और बुद्धि से अपने शरीर के हर सिस्टम को स्कैन करिए. न्यूरो सिस्टम, द ब्रेन, एंडोक्राइन सिस्टम, ईएनटी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, circulatory system, the blood, and the muscular and skeleton system. This body is like a candle. One day it will melt. But I am that eternal flame. Through the eyes of the mind and intellect, I see myself as a point of light. मेरा शरीर मिट्टी से बना हुआ एक दिया है और मैं इस शरीर से अलग एक ज्योति हूं. मेरा शरीर एक सीप की तरह और मैं आत्मा चमकता हुआ मोती, शांत स्वरूप. I am a peaceful being. अब मन और बुद्धि से उस सुप्रीम लाइट को देखिए. Up above the world so high. The source of all positive energy, the supreme light, Param Jyoti. सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के सूर्य हैं. मन और बुद्धि से उनको देखना सर्वश्रेष्ठ योग है. See the vibrations of all positive energy slowly coming to you. और आपके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का ऑरा. आप स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, संतुष्ट हो. फीलिंग गुड. मन और बुद्धि से एक सेकेंड अपने घर के सामने पहुंच जाइए. You're in front of your home sweet home, slowly opening the door. You're entering your home sweet home with this positive aura. And your positive aura is creating a beautiful Vastu Shastra. Go close to your parents with an attitude of gratitude. Touch their feet. Taking their blessings. Go close to your children, grandchildren. See them as twinkle, twinkle little stars. Bless them with health, wealth, and happiness. See yourself in workstation, either in your office or in your kitchen.
and you're taking a drid sankalp. I will increase my reaction time and respond with peace, love, and happiness. Thanking the Almighty, slowly return back. Slowly give movement to the fingers of your legs. हाथों की उंगलियों को धीरे से हिलाइए. अगर आंखें बंद है तो धीरे से आंखें खोलिए. Slowly open your eyes. Keep both your hands in front of you. हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें. Health, wealth, happiness, lots of success. दोनों हाथ को जोड़िए. Slowly stand up in your seat. Stand up in your place. Our children have also come. Welcome. आइए आइए. बाप रे, इतने चुटके चुटके बच्चे. वाह. इनको एक हाथ की ताली बजाकर स्वागत करो. एक हाथ की ताली विदाउट आवाज. वेलकम वेलकम. वाह, ये हमारे देश के भविष्य. इस तरफ देखो. दुखिए. कम कम कम. So we have a children summer camp also during the summer vacations. So if you are not going on a vacation, just check out this summer camp and you can bring these kids. Last year I spent 3 days in the summer camp. और 3 दिन के बाद मैंने देखा बच्चे एकदम शांत स्वरूप, लेकिन मेरे सर के बाल एकदम कम हो गए. बाप रे. और आपके बच्चों को संभालते संभालते मुझे ये लगा कि यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर भाषण देना बहुत इजी है, लेकिन इन बच्चों को संभालने के लिए मुझे लगता है भारत रत्न नहीं, एटलीस्ट आपको पद्मश्री या पद्म भूषण तो मिलना चाहिए, है ना. वाह. चलिए 1 मिनट हम साइलेंस में खड़े होंगे as a mark of respect to all our freedom fighters, and then we'll wind up the program with the national anthem. सभी सीधे खड़े हों. Just feel that the center of the forehead, you are a twinkle, twinkle little star. Very peaceful, children. Spread these vibrations of peace to the entire world, because the whole world is your family. Spread the vibration, my dear sweet children, the 5 elements of nature. And also thank everybody who is making this country very great. We stand in attention for the national anthem. इसको ऑडियो में करें. We salute the Indians who choose to brave the most difficult battlefield, the Siachen, -53 to -83, 12,000 feet to 28,000 feet. Can we all salute?
अच्छा बच्चों, हाउ आर यू? ठीक है, तो चलिए इन बच्चों से मुझे 5 मिनट थोड़ा बात करना है. तो पिछले साल जो मैंने किया था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सो वी आर स्पीकिंग अबाउट गुड हेल्थ. तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, एंड whomsoever gives the right answer, okay, we'll be very happy with your right answer. The first question, बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए? आई वॉज डूइंग दिस प्रोग्राम लास्ट टाइम, तो एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता, सर ऑप्शन सर. कौन बने, करोड़पति चल रहा है? बोला हाँ सर मेरे पास ऑप्शन है. तो 4 ऑप्शंस बताता हूँ. 4 ऑप्शंस को सोच समझ कर जवाब देना. इफ यू वांट एनी हेल्प यू कैन यूज योर लाइफ लाइन्स ऑल्सो. मम्मी डैडी से पूछ सकते हो, ठीक है? ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी कुरकुरे चिप्स. हैदराबाद में मिलता है, हाँ तो फिर ऑप्शन कर सकते हैं. ऑप्शन डी घर में माँ के बनाया, हाथ से बनाया हुआ भोजन. देखो बस ठीक है. बाप रे, ऐसे मेरे बाल उड़ते नहीं है. सो द मैसेज टू यू डियर पेरेंट्स इज, सुबह से शाम तक हम लोग ये करो, ये नहीं करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ बोलते रहते हैं. ये बच्चों को सब कुछ पता है. बच्चे चॉकलेट्स, बच्चे आइसक्रीम, कुरकुरे चिप्स. विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी. ओके ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या नहीं पीना चाहिए? बाप रे, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है. सो लास्ट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग दिस प्रोग्राम, तो मैंने कहा मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो गया है, आप लोग ऑप्शंस बताओ. तो बच्चों ने इतना अच्छे ऑप्शंस दिए. तो सबसे पहले बच्चों ने कहा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए. मैंने कहा अच्छा और बताओ. सर चाय और कॉफी भी नहीं पीना चाहिए. मैं कहा और बताओ. दूध तो चलो डॉक्टर्स कहते तो पी भी सकते हैं, हाँ. क्या नहीं पीना चाहिए? पाउडर्ड मिल्क. वाह, वेरी गुड. देखो एक छोटी बच्ची थी, उसने हाथ उठाया. मैंने कहा क्या, बोलो. नहीं अंकल मुझे ना शर्म आती है बोलने में. बोलो. नहीं मुझे शर्म आता है. मैं कहा अच्छा इधर आओ. स्टेज पे चढ़ा दिया. मैंने कान में बोलो, अंकल सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए. क्या ऑप्शन है? मैं कहा और बताओ क्या नहीं पीना चाहिए. तो देयर वाज वन गर्ल, थोड़ी मे बी स्टडीइंग इन द 7th or 8th standard. शी रेज्ड अप द हैंड. अब क्या बाकी है भाई? चाय नहीं पीना चाहिए, कॉफी नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, लिकर नहीं पीना चाहिए, सिगरेट भी नहीं. अब क्या बाकी है? बोला अंकल पॉइजन भी नहीं पीना चाहिए. मैं कहा ऐसे बोल रहे हो जैसे चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, राइट? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. ओके, अच्छा बच्चों बताइए, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ? आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी अ गुड ह्यूमन बीइंग. आई होप द पेरेंट्स आर लिसनिंग टू योर किड्स. और हम लोग बचपन से लगे रहते, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो. हाँ, करेक्ट. So they are telling that we should become good human beings. Because a good human being automatically becomes a good engineer, good doctor, good manager, good student, a good teacher. Correct? तो एक इंजीनियर बनना है तो 4 साल पढ़ना पड़ता है उसको. डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ता है. मैनेजर बनना है तो पढ़ना पड़ता है. To become good human beings also we should study. So ब्रह्मा कुमारी यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाती है how to become good human being. That's very very important, right? तो good human being के लक्षण क्या हैं? अच्छे से बात करना और सबको रिस्पेक्ट करना और सबकी मदद करना. देखो कितनी वंडरफुल बात है. यस, अच्छा 4th क्वेश्चन ऑल्सो. ओके. अच्छा
Last question. Okay, who are you? This you should take the help of your parents. Lifeline. Who are you? अच्छा इधर आ जाओ. कम. इसकी मम्मी डैडी आए हैं क्या? इसकी मम्मी डैडी हाँ. ओके आ जाओ इधर आ जाओ. Yes. What's your name? मानवी. ओके. अच्छा मानवी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, मानवी की मम्मी से दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है? हाँ. तो सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर मानवी's मम्मा. ठीक है? अच्छा और कोई जो पहली बार आए हैं बच्चे वो हाथ उठाओ. पेरेंट्स जो पहली बार आए हैं. ओके. अच्छा हाँ आ जाओ कोई बच्चे. हाँ आप इधर आ जाओ. यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इसके पेरेंट्स किधर हैं? आप बैठ जाइए. हाँ इसके पेरेंट्स किधर हैं? हाँ पापा. हाँ ओके इधर आ जाए. ओके. हाँ सो आई विल आस्क बोथ ऑफ देम वन. पापा जी बैठिए. ओके आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम और इसका जवाब मैं बताऊंगा. सेकेंड क्वेश्चन आई लास्ट पापा. फिर उनको जवाब नहीं मिलेगा तो इसकी मम्मा को. ठीक है? सो A very important question to both of you is who are you? तो आप लोग बड़े प्यार से बोलना. बोलो I बोलो I am आगे बोलो. बाप रे ये कहाँ से सीखा? यस आप बोलो I am a twinkle twinkle. अरे वाह इसका LKG syllabus is so happy. Meditation is LKG syllabus. Okay, what's your name, my dear boy? Mayank. तो मयंक कहता है I am a twinkle twinkle little star. Okay. पापा अभी खड़े हो जाएं आप प्लीज. पापा now the second question to dear Papa is what is his age? आप नहीं बताओ. What? 9 years. Okay. फिर से हम आपसे पूछेंगे मयंक और फिर से पापा जब तक सही जवाब नहीं देंगे हम पूछते रहेंगे और फिर जब तक सर आपका सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और आज हम शिवरात्रि मनाएंगे. आप पापा खड़े हो जाइए. ओके नो प्रॉब्लम. इट्स अ फन विथ यू. ओके फर्स्ट क्वेश्चन टू यू मयंक. हु आर यू? बोलो आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल. पापा व्हाट इज हिज एज? ओह पापा सही आंसर दो ना मेरा फ्लाइट है. हाँ फिर से हु आर यू? करेक्ट आंसर. पापा योर बेटा इज वेरी इंटेलिजेंट. ही इज गिविंग द राइट आंसर. अब आप भी राइट आंसर बता दो ना. व्हाट इज हिज एज? व्हाट इज हिज एज? पापा बोलो ना. कितना प्यार से पूछ रहा हूँ. बोल दीजिए. हाँ मयंक बोलो पापा से बड़े प्यार से बोलो पापा सही जवाब दो. एक बार मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो उसकी मम्मी ने हेल्प किया. 9 months, 9 years, 5 months, 3 days, 20 minutes, 3 seconds. Okay, पापा. अच्छा अब आप मुझसे मैं पूछता हूँ. Who are you? A point of light. हाँ मम्मा खड़े हो जाओ. What is her age? हाँ she is 8 years. अब हैं? हाँ तालियां बजाओ मम्मा के लिए. Yes. She gave the answer. I'm a point of light. पापा मयंक ने कहा I'm a twinkle twinkle little star. वो कह रहा है मैं स्टार हूं. तो what is his age? It is ageless. शरीर का उम्र जो है वो 9 years है. You are right. I appreciate your answer. But that is 9 years is the physical consciousness. पिछले जन्म में ये आपका दादा या नाना रहा होगा. और इस जन्म में आपका बेटे के रूप में जन्म लिया. इसे जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो ना घूर के देखता है. पिछले जन्म मैं आपको सिखा रहा था. So basically this energy is ageless. हाँ शरीर छोटा है इसलिए हम उसको 9 साल का बताते हैं बट एक्चुअली वी आर ऑल एजलेस. समझ में आया? हाँ तो इन दोनों बच्चों के लिए और उनके पापा और मम्मा के लिए जोर से तालियां बजाइए. थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन. सी योर पापा अंडरस्टूड द राइट आंसर. ओके तो ये समर कैंप में आप बच्चे भी आना. तो यहाँ बहुत अच्छा समर कैंप होता है. बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं. यू डू लॉट ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, अलग अलग कंपटीशन. और हमारी जो बहनें हैं जो टीचर्स हैं वो आपको बहुत अच्छा खाने के लिए भी कुछ ना कुछ देंगे. तो आना यहाँ पर. ओके पेरेंट्स जस्ट चेक आउट द समर कैंप एंड इफ पॉसिबल ब्रिंग दिस स्वीट चिल्ड्रन. ओके थैंक यू वेरी मच.